بلکہ لکھا ہے کہ اس میں خوش نما درختوں کی ڈھالیاں. کون سی جی؟ خوش نما درختوں کی ڈھالیاں ہوں. اس میں اور بھی درختوں کے نام لکھے ہیں اور اس میں ایک کھجور کا نام بھی لکھا ہوا ہے کہ کھجور کی ڈالیاں بھی تم نے کیا کرنی ہے؟ استعمال کرنی ہے. اب چرچ کھجور کی ڈالیاں ہی استعمال کرتا ہے. کیوں؟ جنہوں نے اس کو رواج دیا ان کے ذہن میں کیا تھا وہ شاید ہم نہیں جانتے، لیکن بائبل مقدس کی روشنی میں تھوڑا سا اس کو دیکھیں گے کہ کھجور سے مراد کیا ہے. نمبر ایک، کھجور سے مراد خوشحالی ہے. درختوں کی ڈالیاں یا کھجور سے مراد کیا ہے؟ خوشحالی. جب یسوع مسیح گدھے پر سوار ہوا تو لوگوں نے ہری ہری ڈالیاں کیا کر لی؟ اٹھا لی، لہرانا شروع کر دی، اس کے پاؤں کے نیچے بچھانا شروع کر دی. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں نے ایسا ایکٹ کیوں کیا؟ لوگوں نے بڑے شوق کے ساتھ یا بڑی ایک بوجھ کے ساتھ یا ایک بڑے سمجھے کہ اس ساتھ عمران خان کو ووٹ دیے تھے کہ ملک میں کیا آ جائے گی؟ خوشحالی آ جائے گی. جب بھی کوئی نیا بادشاہ بنتا ہے تو لوگ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں کیا آئے گی جی؟ ہر آنے والے بادشاہ سے لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں کیا آئے گی؟ خوشحالی آئے گی. لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ان بادشاہوں نے خوشحالی لانے کی بجائے ان کی زندگیاں اور عذاب بنا دی، اور مشکل ہو گئی، اور جب وہ تنگی میں چلی گئی. سو جب لوگ ڈالیاں خصوصاً کھجور کی ڈالیاں لہراتے ہیں تو وہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں یا وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ بادشاہ سلامت، ہم آپ کے تابع ہیں، ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، ہم آپ کے فرما بردار ہیں، ہم آپ کی فرما برداری کریں گے، ہم آپ کے حکم کو مانیں گے، ہم آپ کی بات کو سنیں گے. لیکن ہمیں ضرورت ہے خوشحالی کی. ہمیں ضرورت ہے خوشحالی کی. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب لوگ جلسے جلوس نکالتے ہیں تو اب ہر بندہ جو ہے وہ جو مین پرسن ہوتا ہے اس سے بات تو نہیں کر سکتا، بات تو کسی ایک نے کرنی ہوتی ہے. لیکن باقی لوگ کارڈز اٹھا کر اور ان پر کچھ مونو بنا کر، کچھ تصاویر بنا کر وہ اپنے جذبات یا اپنی ضرورت کا کیا کرتے ہیں؟ اظہار کرتے ہیں. سو لوگوں نے جب کھجور کی ڈالیاں اٹھائیں تو دراصل لوگ اس بات کے لیے پکار رہے ہیں کہ اے بادشاہ ہمیں خوشحالی کی ضرورت ہے. اور زبور 118 اس کی 25 آیت میں لکھا ہے، اے خداوند ہم کو خوشحالی عطا کر. ہمیں کیا کر دی؟ خوشحالی عطا کر. کیوں؟ کیونکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب آدم نے گناہ کیا تو خدا نے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور گناہ کیا ہے اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوگی اور وہ تیرے لیے اونٹ کٹانے ہو جائے گی اور تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا. گناہ کے سبب سے زمین پر لعنت آئی اور زمین کی پیداوار پر جو ہے وہ مؤثر اثر ہوا اور اس کی پیداوار کم ہونا شروع ہوگی. یہاں تک کم ہو گئی کہ جب نوح پیدا ہوا تو لوگ اس بات کی آرزو رکھنا شروع ہو گئے کاش ہمیں کوئی اس مشقت سے آزاد کرے. تو لکھا ہے کہ تارا نے، نوح کے باپ نے اپنے بیٹے کا نام یہ کہہ کر نوح رکھا کہ یہ ہمیں ہاتھوں کی مشقت سے آزاد کرے گا. مشقت
और लोगों की डिजायर क्या है? खुशहाली। क्या डिजायर है जी लोगों की? और खुशहाली के लिए लोग देखते किनकी तरफ है? बादशाहों की तरफ, हुकूमतों की तरफ, आला अहकाम की तरफ, सिस्टम की तरफ, इंतजाम की तरफ, अपने से बड़ों की तरफ, अमीरों की तरफ, दूसरों की तरफ देखते हैं कि शायद कोई हमें खुशहाली अता करे। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा हमें खुशहाली अता करे। सो इंसान जो है वो खुशहाली चाहता है, पर खुशहाली आएगी कैसे? क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਵੀ इंसान सिस्टम लिया जो वो सोच लिया वो उदों भी की होंगे खराब निकलता है। महल्ले के बंदे वोट दे के चलो जी महल्ले का बंदा भाई कोई काम करेगा, वो पहला जिहदी जमीन भी नहीं होंगी वो कोठियां का मालिक हो जाता है, तो दूजे उंज दे उंज ही रह जाते हैं। सो निज़ाम बिगड़ चुका है और इंसान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, बद से बदतर। इंसान जो है वो खाने पीने को तरस रहे हैं और बहुत सारे लोग इन हालात की वजह से खुदकुशियां करने पर क्या है? मजबूर हैं। लोग अपने बच्चे बेचने पर मजबूर हैं। सो लोगों की डिजायर है, तमन्ना है खुशहाली, लेकिन खुशहाली आएगी कैसे? बाइबल मुकद्दस में लिखा है ऐ खुदा हमें क्या कर? इंसान खुदा से दुआ करता है कि हमें खुशहाली अता कर, हमें खुशहाली चाहिए। तो खुदा ठीक है खुशहाली दे देने, पर खुशहाली होएगी कैसे? ज़करिया के सहीफा में लिखा है कि वो शख्स जिसका नाम शाह है, जो खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह, मुनज्जी दुआलम है, उसके ज़ेरे साया खुशहाली होगी। खुशहाली है तो यीशु के कदमों में है, खुशहाली है तो यीशु के पास है, दुनिया में और किसी के पास खुशहाली नहीं है। अगर खुशहाली हासिल कर लिया तो वो यीशु के पास। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है ज़करिया नबी के सहीफा में यीशु मसीह के इसी वाक्य की पेशगोई करते हुए कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है और वो हलीम है और वो गधे पर सवार है और लिखा है कि उसके ज़ेरे साया खुशहाली होगी, और लिखा वो खुशहाली अजीम खुशहाली होगी, छोटी मोटी खुशहाली नहीं। कैसी होगी? अजीम खुशहाली होगी। लिखा है खुशहाली अजीम होगी और तुम्हारा जमाल खूब होगा। जब खुशहाली होएगी तो फिर की होएगा? जमाल भी होएगा। खुशहाली होएगी तो मुंह पे रौनक भी होएगी, खुशहाली होएगी तो फिर फायदे चली गया ढिड भी बड़े बड़े हो जाते हैं। कई बाद ही खुशहाली जी बंदे की कर देती है? गलत खराब कर देती है। लेकिन एक बात यह है कि जब खुशहाली होती है तो उसके जिस्म पर उसके अच्छे असरात जरूर मुरतब होते हैं, और वो हकीकी खुशहाली सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? यीशु के पास। क्योंकि लिखा है उसके ज़ेरे साया खुशहाली होगी, और वो खुशहाली क्या होगी? अजीम होगी, उसमें गड़बड़ नहीं होगी। और लिखा है फिर उस खुशहाली के सबब से तुम क्या होगे? तुम्हारा जमाल भी खूबसूरत होगा। फिर क्रीमा ते लोशन लाने की लोड़, फिर इन्हां दी लोड़ नहीं पैगी, क्योंकि यीशु के ज़ेरे साया वो खुशहाली है जिससे चेहरों पर रौनक आ जाती है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब मूसा खुदा के हुजूर जाता था तो क्या होता था? उसका चेहरा कैसा हो जाता था? नूर से भर जाता था, जलाली हो जाता था, और इतना जलाली चेहरा हो जाता था लिखा कोई उस पर निगाह नहीं कर सकता था, कोई उस पर निगाह नहीं कर सकता था।
क्योंकि तुम्हारा जमाल खूब होगा। और लिखा तुम्हारे बेटे गेहूं से परवरिश पाएंगे, कि यानी फिर खान पीन की कमी नहीं होगी। और जमीन पर भी और आसमान पर भी इसका वादा किया गया है कि वहां पर ना भूख होगी और ना प्यास होगी। सो खुशहाली, लोग खुशहाली की डिमांड कर रहे हैं, लोग खुशहाली मांग रहे हैं। लोग खजूर की डालियां लहराकर, खजूर की डालियां दिखाकर, दूसरी डालियां दिखाकर ये मांग रहे हैं, ऐ खुदावंद हमें खुशहाली चाहिए, हमें खुशहाली चाहिए। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुशहाली यीशु मसीह के ज़ेरे साया होगी। और लिखा है जब खुशहाली होगी तो बेटे गेहूं से परवरिश पाएंगे और तुम्हारी बेटियां जो वो मैस की परवरिश होगी, मतलब अच्छी चीजें तुम्हारे घर में होगी। पुराने जमानों में, आज तो गेहूं को हमें कदर नहीं है, आज हमें गेहूं की कदर नहीं है, लेकिन जब ये बात लिखी गई थी तो तब गेहूं खाना या गंदम खाना एक बड़ी समझे जबरदस्त बात होती, क्योंकि लोगों से गंदम खत्म हो जाती थी और लोग जौ खाते थे। आज ही जवां का आटा बड़े शौक ना खाने, चावलों का आटा, बाजरे का आटा, ये लोग मजबूरी में खाते थे। ये लोग शौक से नहीं खाते थे, ये लोग कैसे खाते थे? मजबूरी से खाते थे, क्योंकि लोगों के पास से गंदम क्या हो जाती थी? खत्म हो जाती थी। लोग फिर ये मजबूरी से खाते थे। तो यीशु ने कहा कि जब, यानी कलाम कहता है जब यीशु मसीह की हुकूमत आएगी, बादशाह आएगी, तो फिर दुनिया च गंदम की कमी, ते हुण दुनिया च गंदम की कमी उंज भावें कोई छुपा छड़े तो वक्री गल है, पर हुण खान पीन की कमी नहीं है। सो लिखा है कि हकीकी खुशहाली, अजीम खुशहाली यीशु मसीह के ज़ेरे साया होगी। और फिर खजूर जो है वो कलीसिया की खूबी को भी ज़ाहिर करता है। ग़ज़ल व गुज़रात की किताब में लिखा है तेरी कामत खजूर की मानी है, क्योंकि हम देखते हैं खजूर एक खूबसूरत दरख्त है और उसकी हाइट क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तेरी कामत कैसी होगी? खजूर की मानत। और ये कामत फिजिकली कामत की बात नहीं है, ये रूहानी खद्दोखाल की बात है, ये रूहानी ऊंचाई की बात है, ये रूहानी बुलंदी की बात है कि तेरी रूहानी बुलंदी बहुत ज्यादा होगी, तेरी रूहानियत बहुत उत्तम होगी, तेरी पाकीज़गी उत्तम होनी चाहिए, तेरी रूहानी बुलंदी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि लिखा है कि लाज़िम है कि तुम बढ़ते बढ़ते मसीह के कद के अंदाजा तक पहुंच जाओ। खजूर इस बात को भी ज़ाहिर करती है कि रूहानी तौर पर हमें, रूहानी तौर पर क्या होना चाहिए? बहुत ज़्यादा कद्दावर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्या होना चाहिए? रूहानी तौर पर कद्दावर होना चाहिए। लिखा है कि तुम अब भी रूहानी तौर पर बच्चे हो। बहुत सारे लोग अब भी रूहानी तौर पर क्या हैं? बच्चे हैं, रूहानी तौर पर बौने हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कोई बौना खुदा की हजूरी में पुरानी गल, पर हुण रूहानी बौने खुदा नूं पसंद। वो चाहता रूहानी तौर पर काम जो वो बुलंद होनी चाहिए, हाइट खूब होनी चाहिए, ताकि हम खुदा के हुजूर क्या ठहरे? मकबूल ठहरे। तो हमारी लिखा तेरी कामत खजूर की मानत। सो चर्च की कामत, कलीसिया की कामत, कलीसिया की हाइट यीशु मसीह के कद के अंदाजा के मुताबिक होनी चाहिए। आंदे ना जिड्डा मुंडा होवे कुड़ी भी है, तो जिड्डा साडा दूल्हा सानू भी तोड़ा ही होना है ना। लिखा मेरी मानत बनो जैसे मैं मसीह की मानत बनता हूं। लोग कहते खुदा की तरह केड़ा बन सकता है? अपने तो पता था कि भागला शब्द है, कलाम को एकदम से पीठ पीछे फेंक देते हैं, कलाम पर गौर ही नहीं करते। लेकिन याद रखें ये बहाने
इंसान को बचा नहीं सकेंगे। खुदा चाहता है कि हम रूहानी तौर पर कद्दावर हो। रूहानी तौर पर हमारी हाइट ऊपर होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए। हूँ जो चाहते हैं सारे उत्ते होइए, तो रूहानी तौर पर सारे तो पिछे होइए हैं। उंज हर काम अगे अगे, तो चर्च सारे तो पीछे पीछे नहीं। हमें रूहानी कामों में सबसे क्या होना चाहिए? आगे होना चाहिए। मैंने एक दफ़ा बात बताई थी, जब बच्चे होते हैं एक ही माँ के पुत्र होंगे ने सारे, तो हर कोई की आंदा है अम्मा अम्मा, हर कोई आंदा अम्मा मेरी है तब्बा। तो जब बड़े हो जाते हैं, जब बड़े हो जाते तो फिर अम्मा ते अब्बा, हाल ही काम बदल जाता है। लेकिन हमें ऐसी डिज़ायर रखनी चाहिए कि यीशु सिर्फ मेरा यीशु है, यीशु सिर्फ मेरा यीशु है। गल तो कोई नहीं मुनासिब नहीं, लेकिन खैर मिसाल देनी, कोई औरत अपना शोहर किसी को देना पसंद करती, तो असीं यीशु दे की हाँ कलीसिया दुल्हन, तो फिर सानू अपने दुल्हन की करना चाहिए? कुट के फड़ के रखना चाहिए हाँ, कि छड़ देना चाहिए झाड़ खा रही है। लिखा है तेरा खुदा गयूर खुदा है। कौन सा खुदा है? गयूर। और बाइबल मुकद्दस में इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ जेनेसिस। जेनेसिस, जेनेसिस का क्या मतलब है? जलने वाला। जेड़ा अपनी बीवी अपनी मंगेतर के कोल भी किसी को वेख, जब नवा नवा विआह होंदा बंदे नूं बड़ी गैरत होंदी है, भरावां कोल भी नहीं बैठ देता, किड्डी गैरत है, नवा नवा होंदा ना। ऐसी हमें मसीह के लिए भी क्या होनी चाहिए? यीशु भी साडे लिए इन्नी गैरत रखता है। जब असीं थोड़ा जिहा भी इंज होंदे आ ना, कोई गल नहीं खैर ही है, एक गाना गाना की फर्क पैंदी, ते यीशु उत्थे ही उहदी गैरत की होंदी है, जाग पैंदी है, उसकी गैरत फौरन बेदार हो जाती है। मेरी दुल्हन, मेरी बेटी, मेरा बेटा किसी और तरफ जाए नहीं। तो हमें भी अपने मसीह के बारे में ऐसा होना चाहिए कि यीशु मेरा होवे ते दुआ में बोलो बोल दे, यीशु मेरा होवे ते दुआ में दूजा को करवाती फिर, दुआ में दूजा को करवावा। क्यों? यीशु जो मेरा तो फिर मेरी डायरेक्ट उसके नाल गल होनी चाहिए ना, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मुझे कहना चाहिए यीशु नहीं मेरा काम कर रहे थे हैं, बाहरों निकलते पे आवाजा पे आप टमाटर भी ले आ जाए, फलानी शाह भी ले आ जाए। हमें भी यीशु के साथ इतना करीबी रिलेशन कायम करना है, इतनी गुर्बत कायम करनी है हम अपने मसीह के साथ। रूहानी तौर पर हमें मसीह के साथ इतना गहरा होना है कि असीं कहिए कि यीशु सिर्फ मेरा ते मेरा यीशु मेरी गल सुनदा है, मेरा यीशु मेरी गल मनदा सुनदा। हमें मसीह के साथ ऐसी गुर्बत इख्तियार करनी है, ऐसी नजदीकी इख्तियार करनी है, ऐसी गुर्बत में जाना है। मनो तो तुहाडे बुआ जी कोई काम कर तो हो सकता मैं ना कर सकता हूँ, या मैं कहा चलो भाई 2 दिन की करो, तो यीशु को कोई काम है नामुमकिन? कोई है काम वो कोई नामुमकिन? तो फिर साढ़े काम होंगे क्यों नहीं? फिर खुशहाली आती क्यों नहीं? आज़ादी मिलती क्यों नहीं? सवाल है ना भाई। यीशु को काम नामुमकिन है? कोई औखा है? कोई काम ऐसा जो को नहीं हो सकता? या नहीं आ साल ठहर जा, अगले साल मेरे को पैसे नहीं है,
मेरे को वेल नहीं है, टाइम नहीं है, हाले दूजे दी वारी है, ऐसी कोई गल है? ते फिर खजूर दी डालियां निरियां लहरानियां नहीं, साडी जिंदगी च वो चीज नजर रूहानी कद्दो कामत, रूहानी खद्दो खाल, रूहानी हाइट उच्ची होनी चाहिए। हाँ, दिल तो मेरा भी करता मैं भी सारे भाइयों तो लम्बा ही हूँ, हाँ करता ना दिल, मेरा कद क्यों छोटा है भाई, मेरा थोड़ा ऊंचा हो। रूहानी तौर पर भी हमें डिजायर होनी चाहिए कि मैं रूहानी तौर पर सबसे क्या हूं, ऊपर होना चाहिए। खजूर की ढालियां रूहानी कद्दो कामत को भी जाहिर करती हैं। और आखिरी बात, एक खजूर दी डालियां इत्थे भी ते आसमान ते भी खजूर दी डालियां होंगी। यूहन्ना कहता फिर मैंने बड़ी भीड़ देखी जो खजूर की ढालियां लिए हुए हैं। हालेलुया। वही हैं जिनकी जिंदगियों में खजूर जैसी रूहानी कद्दो कामत होगा, खजूर जैसी रूहानी खूबसूरती, खजूर जैसे उसका फल होगा रूहानी तौर पर। वही आसमान पर भी खजूर की डालियां क्या करेगा, लहराएगा। तो जिन्हें सिर्फ आई डालियां खजूर दियां लहरानियां ने वो ये नाल उत्थे टुट जानियां ने, जन्नत च अग होर की हो जानी थोड़ी। हाँ वेख लो फिर हुण बादल इकट्ठा करना या रूहानी बुलंदी पर जाना है। रूहानी तौर पर मसीह की कुर्बत में हमने जाना है। ये ढालियां हमने सबूत के तौर पर, गवाह के तौर पर लहरानी है। जिस तरह उन्होंने गवाही देने की कोशिश, खुदा तेरे नाम तय किया, यीशु ने कहा मैं तुहानू जानदा, लेकिन लिखा ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, वो मेरास जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की है, उसे क्या करो, ले लो। रूहानी तौर पर ये खजूर की डालियां रूहानी तौर पर हमारी जिंदगी होनी चाहिए। हमारी जिंदगी इन खजूर की डालियों को साबित करे कि हम रूहानी तौर पर खुदा की कुर्बत में हैं, खुदा की नज़दीकी में हैं, और ये साबित हो कि हम वाकई खुदा के लोग हैं और हमारी ज़िंदगी में उसकी खुशहाली भी। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।